So hello guys, welcome, welcome to Avinash Polity Insights. I'm Avinash. So this is first lecture, Indian Polity Lecture 1. So this first lecture we will understand the introduction historical background of the Indian Constitution. So basically we will understand the approach and right process. We will also understand why we need to study the historical background first. Then we will have an introduction of company rule. Then we will understand few concepts like what is Diwani rights, what is Fauzdari and all Diwani versus Fauzdari, why regulation needed. So also we will understand certain concepts, terms and differences like exclusive, non-exclusive, inclusive, what are they, where to use and where not to use. Okay, we also understand the difference between Charter Act, Regulation Act. So basically the language of the video will be English plus Hindi. So it would be a natural mode. ठीक है. Consistency of the lecture it would be in series. ये series में आते जाएगा. ठीक है. So you do not have to worry about it. So let's start with the lecture directly. So Indian Polity Lecture 1, Introduction and Historical Background of Indian Constitution. Okay. So our approach to understanding polity. Our primary focus is not just to learn polity but to understand it. This means we aim to go beyond the limitations of mere knowledge. Knowledge is important, but understanding is what takes you to the next level, the path of wisdom. And wisdom is what truly defines a potential civil servant. Let's understand this properly. See, anyhow हम पॉलिटी पढ़ते हैं, बट हमें अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. देखो, नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, नॉलेज तो आनी ही वाला है एनी हाउ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें वाइज होना है, हमें हमारा विजडम ये टारगेट होना चाहिए. ठीक है. तो ओवरऑल जब हम वो अप्रोच तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऑटो मोड पे होगा, यू डू नॉट हैव टू वरी हाउ हाउ एंड हाउ इट विल एंड दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ऑफ व्हाट इफ, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. It will happen. So you will become a potential civil servant once you get selected. So become wise is our focus. So remember this. Those are the things. The prelims stage tests your skills. So your general understanding, reading ability, analytical thinking, elimination techniques, speed and judgment. ओके, अंडरस्टैंडिंग. देखो एनी हाउ प्रीलिम्स हमें सबको पता है, एक जनरल स्टडीज बेस्ड होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है प्रीलिम्स टेस्ट में. रीडिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि जस्ट आप पढ़ पा रहे हो. रीडिंग एबिलिटी का मतलब ये होता है यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यू कैन एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स. दैट इज व्हाट कंसिडर एज अ रीडिंग एबिलिटी. सो रीडिंग एबिलिटी की तरफ भी उनका फोकस होता है. एनालिटिकल थिंकिंग, ये जब आप चार चीज़ें समझते जाओगे, आप आई वुड से जब आप कॉन्टेक्स्ट समझोगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन वाला कंसेप्ट समझते जाओगे, तो एक एनालिटिकल थिंकिंग खुद बढ़ते जाएगा. वर्ड्स का वेट समझना, ये वो. Elimination techniques, we already know elimination techniques in options how it works, but also once you are able to understand, once you once you have a right knowledge and once you are towards the wisdom side, so elimination techniques becomes one of the most easiest stuff. So you do not have to worry about it. स्पीड ऑफ कोर्स रिवीजन के साथ साथ का आपका स्पीड आ जाएगा. जजमेंट जो कंक्लूड आप करोगे ये सब प्रोसेस में, तो ये सब हमारा ऑटो मोड पे ग्रो होगा. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. The main test your applied knowledge, how deeply you understand the subject and how well you can present your insights. Okay, मेन चेक करता है कि क्या कितना आप जो भी विषय दे रहे हो, जो भी सब्जेक्ट दे रहे हो, कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और कितने अच्छे से आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर पा रहे हो. ब्लैक एंड व्हाइट कर पाना मतलब कितने अच्छे से आप लिख पा रहे हो. सो जो हम प्रीलिम्स में और ये सब में पढ़ाई वगैरह में जो भी स्किल सेट बनाएंगे और बनाते हैं, वो हमारा मेंस में दिख जाता है. इन इंटरव्यू the interview is about your personality, whether you are wise, mature, and responsible enough to shape the future of our society. This is very important. See, मैं डे टू डे लाइफ में ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को मिलते रहता हूँ, मेरा मीटिंग वगैरह होते रहता है, सो आई नो हाउ प्रैक्टिकली दे वर्क. तो इन इंटरव्यू जो आपके इंटरव्यू ले रहे जो पैनल्स में बैठे हुए, दे आर रियली एक्सपीरियंस पीपल. लाइक आपको सिल्वर हेयर, ग्रे हेयर को कन्विंस करना है, बट कन्विंस में भी आपको एफर्ट्स लगते हैं. सो
जब आपको सर्टेन लेवल्स ऑफ स्किल्स आप डेवलप हो जाते हैं, सर्टेन लेवल्स ऑफ आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइज आप डेवलप हो जाते हैं, सो एफर्टलेसली होता है। सो ये सब पीयर ड्रिवन वगैरह आपका कुछ आएगा नहीं। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड। Okay, and don't worry, it will grow automatically. So my approach is by considering all this in mind, especially for those who are either new to polity or have just started exploring it. I will help you understand polity in a way that over time your skills and insight will grow automatically, as I say so. So with the right process and mindset, you will naturally evolve into a wise, capable and successful civil services aspirant. ओके, सो मेरा अप्रोच यही रहेगा ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मेरा खुद के सब कुछ नोट्स बनाए हुए, खुद का सब कुछ है, सो यू डो नॉट हैव टू वरी हाउ एंड ऑल। जस्ट जस्ट गो विद द फ्लो, यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओवर टाइम आपका स्किल्स इनसाइड ये ग्रो होते जाएगा खुद ही में, एफर्टलेसली ग्रो होते जाएगा। डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो राइट प्रोसेस, राइट माइंडसेट बनते जाएगा, तो नेचुरली आप इवॉल्व हो जाओगे, वाइज, कैपेबल एंड सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। Okay, so let's start with the lecture. So Indian polity lecture 1, historical background of the Indian constitution. So basically एक आ जाता है कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हिस्ट्री तो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, yes, and you're right, but when it comes to polity we have to understand the historical background, not exactly a deeper event but what it concluded into, जो एक्ट्स के माध्यम से हुए, क्योंकि ये सब चीज़ों ने हमारा फ्यूचर शेप किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया हुआ है, आपका अपना प्रेजेंट शेप किया हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड। सो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट एकेडमिक, इट्स फाउंडेशनल। हियर्स व्हाई it is foundation stone of our constitution. Okay, our constitution is deeply rooted in historical experiences of the Indian subcontinent. India has witnessed a long journey of invasion, colonization, and political evolution. The most recent and impactful phase, that is British colonial rule, significantly shaped the structure, institutions, and spirit of our polity. Understand? Okay. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा हिस्ट्री है, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे सॉइल ने देखा हुआ है, इन्वेजन देखा हुआ है, कॉलोनाइजेशन देखा हुआ है, इसी तरह से पॉलिटिकल इवोल्यूशंस भी हुआ है। तो मोस्ट रिसेंट तो हमें पता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से इम्पैक्ट किया हमारा स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, स्पिरिट ऑफ आवर प्रेजेंट पॉलिटी को। जो प्रेजेंट पॉलिटी, इसमें इन लोगों का काफ़ी कुछ रहा है। ठीक है, सो सोचने के लिए ऐसे सोच लो कि थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ट्री, इट्स रूट्स लाई डीप इन आवर हिस्ट्री। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज रूट्स वी कैनॉट फुल्ली ग्रैस्प द स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेड़ समझो, बहुत बड़ा पेड़ और उसके जो रूट्स है वो हिस्ट्री है। हमें अगर पेड़ का स्ट्रेंथ समझना है तो हमें रूट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, so influence of historical acts. The second is influences of historical acts. Over time, the British introduced several laws and acts to administer India. Many of these acts, particularly the Government of India Act 1935, left a lasting imprint on our constitutional framework. ठीक है, जब ब्रिटिश रूल था तो काफ़ी लॉज आए थे, काफ़ी एक्ट्स आए थे इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए। काफ़ी एक्ट्स है, काफ़ी एक्ट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। प्रोविजन लाइक फेडरल स्ट्रक्चर, इमरजेंसी पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज वर ऑल ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। ओके, सो टू अप्रिशिएट द कंटिन्यूटी एंड द चेंजेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस हिस्टोरिकल माइलस्टोन। ओके, हमें कंटिन्यूटी की तरफ ध्यान देते हुए और जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए गए हैं, सो हिस्टोरिकल चीज़ें, हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हमें समझना होगा। It is a part of the syllabus. It is very direct one. Okay, whether you are preparing for general studies or optional subjects like political science and others, the historical background of the constitution is either directly mentioned or implicitly required. ये तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब मेंशन रहेगा या इनडायरेक्टली रहेगा, जो हेल्प करता है, ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है। तो सिलेबस में है, इन एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड नॉट ओनली ऑन फैक्ट्स but also on connections, evolution and conceptual understanding. This topic builds that foundation. ठीक है, यूपीएससी जैसे इसमें ना नॉट जरूरी नहीं कि यार बस फैक्ट्स पूछ लिया, यहाँ 1773 में क्या था या कुछ भी फैक्ट, कोड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, जरूरी नहीं। कभी कभी कनेक्टेड
क्वेश्चंस आ जाते हैं इवॉल्व होते हुए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसलिए ये टॉपिक, इसलिए मैंने ये टॉपिक को फाउंडेशन बोला हुआ है। So the most important thing, don't just study this topic for exams. Study to understand the gravity of where we come from and how the past continues to shape our democratic present. ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पढ़ना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि गहराई में कि भाई पास कंटिन्यू करते आया हमारा प्रेजेंट डेमोक्रेटिक प्रेजेंट को। ठीक है, so let's start with an introduction of phase जो है 1773 से लेके 1858 का। जो इंट्रोडक्शन हम समझते कंपनी रूल 1773 टू 1858 इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा बैकग्राउंड टाइमलाइन समझते हैं। 1600 the East India Company, a private trading company, was founded in England. It was granted an exclusive rights to trade with the East Indies, including India, under a royal charter by Queen Elizabeth I. तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी था, ऐसे समझ लो दुकानदार था जो इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में फॉर्म हुआ था। उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दिया था। अभी क्या एक्सक्लूसिव राइट्स है हम समझेंगे आगे। टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया अंडर द रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ। अभी चार्टर क्या हम समझेंगे। क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर में किया था मुझे। ठीक है, इन 1765 अगेन इन पॉलिटी में एक चीज होता है, जब कभी भी आप ईयर्स करते हो तो यू विल मेक श्योर कि ईयर्स के डिफरेंस समझते जाओ। 1600 में हुआ, उसके बाद 1765, कितना ईयर्स का गैप है उस हिसाब से आप लिखते जाइएगा। ओके, एंड ऑल्सो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है अविनाश पॉलिटी इंसाइट्स, AVINAASH पॉलिटी इंसाइट्स। ठीक है, वहाँ पे आफ्टर द लेक्चर नोट्स अपलोड होंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल, अपडेट्स उधर आते रहेंगे। सो प्लीज़ go and join that channel. So 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुआ था, द कंपनी obtained the दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम टू। देखो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है बट हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट आया दीवानी राइट्स, तो वी विल अंडरस्टैंड। तो जब बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, तो कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम। ठीक है, so let's understand one thing. What are Diwani rights? Diwani rights होता क्या है? तो Diwani refers to the right to collect revenue and administer civil justice. In simple terms, company was now not just a trader; it had become a revenue collector and civil administrator over a vast Indian territory. ठीक है, देखो दीवानी राइट्स सिविल, फौजदारी, क्रिमिनल, ऐसे समझा करो। तो दीवानी राइट्स क्या है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस। तो जो कंपनी जो सिर्फ दुकानदारी का काम कर रहा था, आज वो जो दुकानदारी या धंधे का काम कर रहा था, आज वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी संभालेगा इंडियन टेरिटरी का। व्हाई वाज रेगुलेशन नीडेड? ठीक है, एक सेकेंड सवाल आता है बच्चों को कि यार रेगुलेशन की क्या जरूरत पड़ गई थी। सो द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू एक्सप्लॉइट दीज पावर्स फॉर पर्सनल एनरिचमेंट एंड करप्शन। तो जो सर्वेंट्स थे, ठीक है, कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, वो लोग एक्सप्लॉइट करने लगे ये चीज़ें खुद के लिए। ये इतना सारा वास्ट पावर उनको आ गया कि खुद का भला करने लग गए, करप्शन सब आगे करने लगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग गए। तो द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ओवरसाइट ओवर अ प्राइवेट कंपनी रूलिंग मिलियंस ऑफ पीपल वाज अलार्मिंग। जैसे काफ़ी लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, कोई भी लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी पब्लिक ओवरसाइट नहीं है और प्राइवेट कंपनी है। तो भाई लोग इतने मिलियंस लाखों लोगों को वो रूल कर रहे हैं, तो भाई ये जरा अलार्मिंग ही होगा ना कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दिस प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया थ्रू फॉर्मल लेजिस्लेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा चलो यार अभी आते हैं, रेगुलेट करते हैं, इन लोगों को थोड़ा कंट्रोल में लाना जरूरी है, तो फॉर्मल लेजिस्लेशन लेके आएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेज 1773 से लेके 1858 का फर्स्ट हमारा सीरीज होगा। ठीक है, so this period marks the transformation of East India Company from a commercial enterprise to a territorial administrative power under British supervision. Very important to understand. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी था जो एक कमर्शियल एंटरप्राइजेस था, हाँ क्या, उसको टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तरफ लेके गए।
This period marked the transformation of East India Company from commercial enterprise to a territorial administrative power under British supervision. It saw the gradual evolution of colonial government. धीरे धीरे हुआ ना, कॉलोनियल की तरफ चले गए धीरे धीरे. It saw the gradual evolution of colonial governance, laying the administrative foundation for what would later become the British Crown in 1858. 1858 तक पहुंचते वो तो पूरी तरीके से कॉलोनाइजेशन की तरफ लाते लाते क्या क्या हुआ, इवोल्यूशन, ये सब तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन बना, ये सब है ये पेज. ठीक है, so let's go to the concepts, very important concepts once and for all. You guys have to understand this. ठीक है, so exclusive rights क्या होता है? So what are exclusive rights? Exclusive rights means the only, always remember पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, ओनली जैसे वर्ड आता है तो मार्क किया करो. ठीक है, और सेंटेंस में ओनली जैसा वर्ड आ रहा है मार्क किया करो, ऑलवेज एक ध्यान रखा करो चीज पे. सो एक्सक्लूसिव राइट्स मीन that only one person or entity is allowed to do a particular activity and no one else can legally do it unless they are granted permission. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया क्वीन एलिजाबेथ वन ने, ठीक है, तो कोई और कंपनी नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकते हैं, तो सिर्फ वही कर सकते हैं. तो कंपैरिजन ड्रॉ करते, एक आ जाता है लोगों के दिमाग में कि यार एक्सक्लूसिव का अगर मैं ऑपोजिट बोले तो इंक्लूसिव बोलते थे, तो नहीं, पॉलिटी में इट इज नॉट राइट वर्ड. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लीगल कॉन्ट्रैक्ट इसमें, सो एक्सक्लूसिव राइट्स का हमेशा ऑपोजिट रहेगा नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स, नॉट इंक्लूसिव. क्या रहेगा ऑपोजिट? नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड, एक्सक्लूसिव राइट्स ओनली वन पार्टी हैज द लीगल राइट्स. तो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स में क्या रहेगा? मेनी पार्टीज कैन एक्सेस द सेम राइट. एक्सक्लूसिव राइट्स में सेकेंड पॉइंट है नो वन एल्स कैन एक्ट विदाउट परमिशन. नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स का सेकंड पॉइंट है अदर्स कैन एक्ट विदाउट नीडिंग एनी अप्रूवल. ठीक है, एक बार मिल गया नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स हो गया तो अप्रूवल की जरूरत नहीं. अदर्स कैन एक्ट विदाउट नीडिंग एनी अप्रूवल. एक्सक्लूसिव राइट्स क्रिएट्स मोनोपोली. ठीक है, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोमोट्स कंपटीशन और शेयर्ड एक्सेस. ये डिफरेंस है. ठीक है, तो एक जनरल मिस्टेक आता है, जैसे मैंने पहले कहा, वेदर नॉन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव आर सेम. एक क्वेश्चन आता है, काफी लोगों को नहीं पता, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वंस एंड फॉर ऑल. इट्स इजी टू कंफ्यूज नॉन एक्सक्लूसिव विथ इंक्लूसिव, बट दे आर नॉट द सेम. दे रेफर टू डिफरेंट आइडियाज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ओके, so non-exclusive is not equal to inclusive. Remember this, they are related but not interchangeable. Related है but interchangeable नहीं होगा. So non-exclusive हम किधर यूज करते हैं? लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं इस टर्म को. इंक्लूसिव हम सोशल एंड जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. तो नॉन एक्सक्लूसिव में क्या है? मीन्स द राइट इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन और अ पार्टी. ठीक है, अदर्स कैन ऑल्सो हैव द सेम राइट. ये नॉन एक्सक्लूसिव बोलता है. इंक्लूसिव क्या बोलता है इस जगह पे, जो सोशल और जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है इंक्लूसिव को, मीन्स एवरीवन इज वेलकम और कंसिडर्ड. ठीक है, ओपन यूज इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट. अभी जैसे इंक्लूसिव हम मोस्ट स्पेसिफिकली हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. ठीक है, सो इसलिए अंडरस्टैंड करो, इकोनॉमिक्स में आप नॉन एक्सक्लूसिव नहीं लिखोगे जब तक वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म में नहीं आता. हम वहाँ पे इंक्लूसिव लिखते हैं नॉन एक्सक्लूसिव की जगह. ठीक है, सो इंक्लूसिव इज लाइक मीन्स एवरीवन इज वेलकम और कंसिडर्ड. ओपन यूज इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, सो टर्म्स जैसे फिर से एक बार छोटे और इसको छोटा कर देते हैं. नॉन एक्सक्लूसिव इज नॉट लिमिटेड टू वन पार्टी, शेयर्ड एक्सेस. यूसेज इसका होता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में? लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल में होता है. इंक्लूसिव एम्ब्रेसिंग एवरीवन, नॉट लिविंग एनीवन आउट. और इसका उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता, कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? सोशल, कल्चरल एंड पॉलिसी बेस्ड. दैट्स वाई मैंने एक इकोनॉमिक्स का आपको एग्जांपल दे दी. ठीक है, सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर डिफरेंसेस. ओके, सो चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? So what is charter? A charter is a formal document issued by a monarch or authority granting rights, power or privileges to an individual group or company. Always focus, जब charter ही सिर्फ लिखा गया, issued by monarch or authority granting. ठीक है, authority granting rights, powers or privilege to an individual
group or a company. What is Charter Act? Charter Act is an act passed by the British Parliament that renewed or modified the charter, that is rights of the East India Company. देखो, the moment act शब्द आ गया, आप द मोमेंट एक्ट शब्द आ गया, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पार्लियामेंट आ गया, ठीक है। यू डू नॉट, चार्टर में एक्ट शब्द नहीं था, इसलिए यहाँ पे चार्टर एक्ट आ गया, सो पार्लियामेंट आ गया। सो अ चार्टर एक्ट इज एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट रिन्यूड और मॉडिफाइड द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। So what is regulating act? A regulating act is a specific act passed by the British Parliament to regulate the East India Company's political and administrative control in India. ठीक है? So what is an act? चलो हम एक जनरल बात करते हैं। An act is a formal law passed by the legislature, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट या इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। सो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंस समझेंगे। टेबल है ये, so this is a table. So charter versus charter act. So what is charter? Royal order or grant. Charter act, law, that is act passed by the parliament. Charter issued by monarch. Charter act issued by British parliament. Charter purpose. Charter purpose is to grant permission or rights. Charter act purpose was to regulate or modify the company's power. Charter's legal status not a formal law, more like a royal license. ठीक है, whereas Charter Act a legally binding law. Example for charter is 1600 charter to East India Company जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था। चार्टर एक्ट का एग्जाम्पल हम जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853 ये है। स्कोप समझते चार्टर का, गिव इनिशियल मोनोपोली एंड ट्रेड प्रिविलेजेस। चार्टर एक्ट का है कंट्रोल्ड गवर्नेंस, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट और जनरल एक्ट का तो हमें पता है। यू गाइस विल गेट दिस नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल अविनाश पॉलिटी इनसाइट्स, ठीक है। आफ्टर द लेक्चर इट विल गेट अपलोडेड एनी हाउ। सो लेट्स अंडरस्टैंड रेगुलेटिंग एक्ट एंड जनरल एक्ट। मीनिंग क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का? अ स्पेसिफिक लॉ और अ स्पेसिफिक लॉ aimed at regulating the East India Company, whereas General Act any law passed by the legislature. Regulating Act का पर्पस क्या है? टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ओवर द कंपनीज मिसरूल। whereas जनरल एक्ट का पर्पस कैन बी फॉर एनी पर्पस, जैसे गवर्नेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, कुछ भी हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट का स्कोप क्या है? फोकस्ड ओनली ऑन कंपनीज, फोकस्ड ओनली ऑन द कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इंडिया। जनरल एक्ट कैन बी ब्रॉड और नैरो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? मार्क द फर्स्ट पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन इन इंडियन अफेयर्स। ऑलवेज whenever you are reading the polity, especially political history, polity based history, so first जिधर भी रहेगा please highlight those words all the time. So historical significance mark the first parliamentary intervention in Indian affairs. General act depends on that, not all are landmark acts, okay, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल रेगुलेटिंग एक्ट का है, रेगुलेटिंग एक्ट पास ड्यूरिंग अ कंपनी रूल, ठीक है। वेयर जनरल एक्ट तो चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया इंडिया में। सो दो साल थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये एक है एवरी रेगुलेटिंग एक्ट इज एन एक्ट बट नॉट एवरी एक्ट इज अ रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। coming up lecture will be regulating act of 1773. You guys can download notes for free after this video. I will upload it on my telegram channel @Avinash Polity Insights, AVINAASH Polity Insights, okay, Avinash Polity Insights. Do subscribe for more UPSC polity lectures. So next इसमें हम of course रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ने वाले, उसमें कि लाइक हम पॉलिटी कैसे पढ़ते हैं बेसिकली, कैसे पढ़ने वाले हैं एंड उसी हिसाब से वो शेड्यूल जो हम आज के समय में पढ़ते हैं वो भी कैसे पढ़ा जाता है। देन कुछ डिफरेंसेस हम समझेंगे, जैसे प्रोहिबिशन, बैन, कंट्रोल, ये सब क्या होता है इसमें, गवर्नर जनरल, ये सब क्या है वो अच्छे से पढ़ेंगे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब। सो thank you for watching, stay tuned.